السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر محترم اور مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے جامعہ کے لال و گوہر، ہندوستان کی سرزمین مختلف تہذیب و تمدن کا صدیوں سے گہوارہ رہی ہے۔ یہاں مختلف وقتوں میں طرح طرح کی قومیں آ کر بستی رہی ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر انگریزی حکومت کی یہاں آمد ہوئی ہے، جس کی بنیاد مشہور سیاح واسکو ڈی گاما کو بتایا جاتا ہے۔ چنانچہ ہندوستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے 20 مئی 1498 عیسوی میں واسکو ڈی گاما نامی پرتگالی ملہ سمندری راستے سے ہندوستان آیا، اور دراصل اس نے ہی یورپی اقوام کے لیے ہندوستان کی سیر و سیاحت کا دروازہ کھولا۔ واسکو ڈی گاما کے آمد کے بعد رفتہ رفتہ دیگر یورپی طاقتیں بھی انہی کے راستے سے دولت اور تجارت کی غرض سے یہاں آنے لگی۔ دراصل اسی کے بعد انگریزوں کی آمد و رفت کا باضابطہ یہاں سلسلہ شروع ہوا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 1612 عیسوی میں مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں ان لوگوں نے تجارت کے بہانے یہاں قدم رکھا اور بعد میں اسی سرزمین پر حکومت کا خواب دیکھنے لگے۔ محترم سامعین کرام، ابتدائی طور پر ان لوگوں نے مغل بادشاہوں سے سفارتی تعلقات قائم کیے۔ اسی دوران انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ہندوستان کے مشرقی ساحل پر واقع شہر مچھلی پٹنم یعنی آندھرا پردیش میں اپنی پہلی فیکٹری قائم کی۔ اس کے بعد اسی کمپنی نے 1647 عیسوی تک سورت، احمد آباد، آگرہ، مدراس اور ممبئی سمیت کئی شہروں میں اپنی فیکٹریاں اور تجارتی کوٹھیاں قائم کر لیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مغل بادشاہ جہانگیر کے بعد جب اورنگزیب کا دور آیا تو انہوں نے 1661 عیسوی میں انگریزوں کے ناپاک عزائم کو بھانپ لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہ اورنگزیب نے ان کو ہندوستان سے باہر کا راستہ دکھا دیا، لیکن انگریز خاموش نہیں بیٹھے بلکہ دوبارہ انہوں نے پھر سے ہندوستان آ کر اجازت مانگی۔ کافی ملت سماجت کی تو بہرحال اجازت مل گئی۔ تاہم ایک کلکتہ شہر خرید کر ان لوگوں نے اپنا فوجی قلعہ تعمیر کر لیا۔ اس کے بعد مدراس میں اپنی کمپنی قائم کی اور آہستہ آہستہ ملک کے انتظامی امور میں بھی داخل ہو گئے۔ یہاں ان کا اثر اتنا بڑھ گیا کہ اس زمانے کے بادشاہ کے لیے کسی معاملے میں ان کو نظر انداز کرنا اور ان سے مشورہ نہ مانگنا ممکن نہیں تھا۔ انگریزوں نے ہندوستانی حکمرانوں کی رواداری کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کرناٹک پر بھی اپنا قبضہ جما لیا۔ مرور زمانے کے ساتھ انہوں نے اپنی اس کمپنی کے ذریعے فوجی طاقت بنائی، معاملاتی شاخصوں میں بھی حصہ لیا۔ آخرکار یہاں پر اس کمپنی کے توسط سے یہ لوگ اپنی حکومت بھی کرنے لگے۔ اس طرح جگہ جگہ پر ان لوگوں نے اپنا قبضہ اور تسلط جمانا شروع کر دیا۔ جب یہ خبریں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے ہی سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف 1740 عیسوی میں جہاد فی سبیل اللہ فتوا دیا۔ پھر مسلم حکمرانوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی شروع کر دیا۔ سفید فام انگریز دراصل ہندوستان کو اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا چاہتے تھے، جو فی نفسی شریعت کی نگاہ میں ایک مضبوط عمل تھا۔ اسی بنیاد پر تحریک آزادی ہند کی ابتدا سب سے پہلے مسلم حکمرانوں نے شروع کی، جن میں سب سے پہلا نمایاں نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان کا آتا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اور منظم طور پر 1754 عیسوی میں انگریزوں پر حملہ کر کے انہیں ڈائمنڈ ہاربر میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ آپ نے 1740 عیسوی کا 1756 عیسوی تک بڑی قابلیت سے بنگال پر حکومت کیا۔ دوسرا نام مسلم حکمراں جس نے انگریزوں کے خلاف تحریک آزادی ہند کا پرچم لہرایا، تاریخ میں اسے سراج الدولہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ درحقیقت انہوں نے ہی اپنے نانا علی وردی خان کی اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے سفید انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، جسے علی وردی خان نے اپنے نواسے سراج الدولہ کو زندگی کے آخری ایام میں کیا تھا موصوف نے کہا تھا، اے سراج الدولہ، فرنگی اقوام نے جو ملک میں طاقت پیدا کر لی ہے اس کو دھیان میں رکھنا۔ اگر خدا مجھ کو زندہ رکھتا تو تمہاری یہ فکر بھی دور کر دیتا۔ انہیں قلعہ بندی اور فوج رکھنے کی کبھی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی انہیں اس ملک پر قابض ہونے کا موقع فراہم کرتا۔ اپنے نانا کی اس وصیت کی وجہ سے آپ ہر وقت تیار رہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے بھی اپنے زمانے میں اپنے نانا کی طرح انگریزوں جنرل کلاری کے خلاف 22 یا 23 جولائی 1757 عیسوی میں ایک جنگ لڑی، جسے تاریخ میں پلاسی کی جنگ سے جانا جاتا ہے۔ مغل مسلم حکمران
की फहरिस्त में एक नाम शाह आलम का भी आता है। आपने और अहद यानी लखनऊ के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल और बिहार के मीर कासिम के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक जबरदस्त जंग लड़ी, जिसे तारीख में बक्सर के नाम से मौसूल किया जाता है। ये जंग 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बिहार की राजधानी पटना से 130 किलोमीटर दूर गंगा किनारे पर वाक़ बक्सर नामी जगह में हुई। इस जंग में अंग्रेजों के कमांडर हंटर मुनरो ने इसकी क़ियादत की। अंग्रेज फौजों की तादाद 8000 थी, मुस्लिम सिपाहियों की तादाद तकरीबन 40,000 थी, लेकिन तन के उजले, मन के काले, गोरी चमड़े वाले, फूट डालो और हुकूमत करो पर अमल करने वाले इस जंग में जीत गए। जंग आजादी के मुजाहिदीन मुस्लिम हुक्मरानों की फहरिस्त में एक नाम हैदर अली का आता है, जबकि दूसरा नाम इनके बेटे टीपू सुल्तान का है। नवाब हैदर अली ने मैसूर के हिंदू राजा की फौज में एक सिपाही की हैसियत से हमारी जिंदगी का आगाज किया। आपकी हुकूमत का आगाज 1761 ईस्वी से होता है। आपने 20 साल दौरे हुकूमत में मराठों, निजाम देगन और अंग्रेज तीनों का मुकाबला किया। अगरचे इन लड़ाइयों में आपको नाकामियां हासिल हुई, लेकिन इसके बावजूद आपने मालाबार के साहिल से लेकर दरिया कृष्णा तक एक बहुत बड़ी रियासत कायम कर ली, जिसमें निजाम देगन, मराठों और अंग्रेजों से छीने हुए इलाके भी शामिल थे। आपने मैसूर की पहली जंग 1767 ईस्वी का 1769 और दूसरी जंग 1780 का 84 में अंग्रेजों को 2 बार शिकस्त दी। दूसरी जंग में हैदर अली ने निजाम देगन और मराठों को साथ मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ मुत्तहिदा महाज बनाया था, लेकिन इन दोनों ने भी आखिरी वक्त में साथ छोड़ दिया, जिसका नतीजा यह निकला कि आप अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो सके। अभी मैसूर की दूसरी जंग जारी थी कि नवाब हैदर अली का अचानक इंतकाल हो गया। आपका लड़का फतेह अली अल-मारूफ टीपू सुल्तान मौसूल का जानशीन हुआ। शेर मैसूर जब तक पर बैठे तो आपकी उम्र 32 साल थी। आपने अंग्रेजों के खिलाफ मुत्तादिद जंगें लड़ी और इनको शिकस्त फाश भी किया। आखिरकार अंग्रेज 1784 ईस्वी में सुल्तान से सुलह करने पर मजबूर हो गए। अंग्रेजों और शेर मैसूर के दरमियान सुलह को मुश्किल से 6 साल हुए थे कि अंग्रेजों ने मुआहदे को बालाइकाफ रखकर निजाम हैदराबाद और मराठों के साथ मिलकर मैसूर पर हमला कर दिया। इस तरह मैसूर की तीसरी जंग 1790 ईस्वी का 92 का आगाज हुआ। इस मुत्तहिदा कुव्वत के सामने शेर मैसूर को जेल रखना पड़ा। जंग में नाकामी टीपू सुल्तान के लिए बड़ी तकलीफ साबित हुई, तो आपने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने की ठान ली। आखिरकार अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के सामने कुछ शराइत पेश किया, जिनको कोई बाइज्जत कबूल नहीं कर सकता था। निजाम देगन और इसके अलावा लोगों ने अंग्रेजों के शराइत को तस्लीम कर लिया था, लेकिन टीपू सुल्तान ने जिनका वो ये था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है, इन शराइत को रद्द कर दिया। 1799 ईस्वी में अंग्रेजों ने मैसूर की चौथी जंग छेड़ी। इस मरतबा अंग्रेजी फौज की कमान लॉर्ड वेलिंग्टन ने अपने हाथ में ले रखी थी। अंग्रेजी दिखाते हैं इस जंग में वजीर आजम मीर सादिक और गुलाम अली और दूसरे अहदेदारों की गद्दारी की वजह से, जिनको अंग्रेजों ने अपने साथ मिला लिया था, सुल्तान को शिकस्त हुई और दारुल हुकूमत सरकापट्टनम के किले के दरवाजे पर बहादुरी से अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए आखिरकार शेर मैसूर 4 मई 1799 ईस्वी को शहीद हो गए। दक्कन के मुस्लिम हुक्मरानों खास तौर पर हैदराबाद के नवाब निजाम ने अंग्रेजों के खिलाफ कई सियासी और फौजी इक़दाम किए, लेकिन वो मुकम्मल आजादी न हासिल कर सके। निजाम अली खान ने 1798 ईस्वी के मुआहदे के जरिए अंग्रेजों को फौजी छावनियां कायम करने दी, जिससे हैदराबाद की खुद मुख्तारी कमजोर हुई। 1857 ईस्वी की जंग आजादी में हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों की हिमायत की, लेकिन कुछ मकामी बागियों ने मुजाहिदत की। फिर अंग्रेजों ने तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाकर अपना तसल्लुत कायम कर लिया। अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने वाले मुस्लिम हुक्मरानों की फहरिस्त में मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर का भी नाम सिर्फ फहरिस्त है। आपने 11 मई 1857 ईस्वी की जंग आजादी में अंग्रेजों के खिलाफ अहम किरदार अदा किया। अगरचे कि आप उम्र रसीदा और कमजोर हो चुके थे, लेकिन आपने बागी फौजियों और अवामी तहरीक की हिमायत की और आपने इस जंग, जिसे अंग्रेज गदर के नाम से मौसूल करते हैं, में क़ियादत का फरीज़ा अंजाम दिया। आपने हिंदुस्तान भर के राजा, नवाबों और अवाम को खतूत लिखकर अंग्रेजों के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील की। इन्होंने जिहाद का नारा दिया और मुसलमानों के साथ हिंदुओं को भी अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा होने की तरजीह दी। जून 10 सितंबर 1857 ईस्वी तक दिल्ली में बागी फौजों और अंग्रेजों के दरमियान शदीद लड़ाई हुई। बहादुर शाह जफर ने लाल किले में रहते हुए बागियों की हौसला अफजाई करते रहे। आखिरकार ब्रिगेडियर विलियम हेडसन ने आपको गिरफ्तार कर लिया और आप पर गद्दारी का मुकदमा चलाया, जिसमें आपको बाग़यात सरगर्मियों में मुलव्विस पाया गया और 18 अक्टूबर 1858 ईस्वी में आपको
मुल्क भेज दिया गया, जहां 7 नवंबर 1862 ईस्वी को आपका इंतकाल हुआ। अगरचे आप एक कमजोर अलगाए मौसम बना थे, लेकिन 1857 ईस्वी की जंग आजादी में आपकी अलामती क़यादत ने हिंदुस्तान भर में अंग्रेजों के खिलाफ मुजाहिदों को मुत्तहिद किया। मुजाहिदीन मुस्लिम हुक्मरानों के सिलसिले की आखिरी कड़ी के तौर पर यहाँ अवध यानी लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के कारनामे को पेश करना चाहता हूँ। नवाब वाजिद अली शाह 1822 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक अवध यानी लखनऊ के आखिरी नवाब रहे। अंग्रेजों के खिलाफ बराह रास्त जंग तो नहीं लड़ी, लेकिन इनके खिलाफ सियासी और सकाफती मुजाहिदत की। आखिर वालिद अली शाह एक शायर और मुसन्निफ थे और इसने जलावतनी के दौरान किताबें और शायरी लिखकर अवध की तहजीब को जिंदा रखा। आपकी तारीखों में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा पाया जाता था। आपने जलावतनी के बाद भी अवध के मुजाहिदीन को माली इमदाद फराहम करने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों ने इसे भी रोक दिया और किसी किस्म की सियासी साजिश करने की इजाजत नहीं। आखिरकार आपका इंतकाल 1857 ईस्वी कलकत्ता में हुआ और वही आपको दफन भी किया गया। खुलासा कलाम ये है कि तारीख आजादी हिंद या जंग आजादी का तारीखी सिलसिला यूं तो अजूबे तारीख 1740 ईस्वी से होता है, अलबत्ता इसकी इंतहा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को होती है। इस दरमियान इस तहरीक ने बहुत सारे नशीब फवाद देखे, ताहम ये तारीखी हकीकत है। इब्तिदाई तौर पर जंग आजादी में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की कुर्बानियां 117 साल पर हुई थे, जिसकी शुरुआत 1740 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक जा पहुंचती है। अलबत्ता 1857 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी यानी लगभग 90 साल तक आजादी की इस तहरीक में मुसलमानों के साथ गैरों की भी शिरकत रही। बल्कि एक तारीखी हकीकत यह भी है कि बाज़ तारीख रईसों ने मुसलमानों की इब्तिदाई कुर्बानियों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया है, तो बाज़ दूसरे मौलवी का हाल यह है कि जंग आजादी की तारीख को महज बरादरान वतन की रहीने मिन्नत करार देने की कोशिश करते हैं और आजादी की पूरी तारीख में मुसलमानों का जिक्र आटे में नमक के बराबर रखने की कोशिश की जाती है, जो तारीख आजादी हिंद के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आखिर अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबों को वतन के तई मोहब्बत करें और मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।